Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope all of you can listen to my voice clearly and also see my screen. बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज़ भी clearly आ रही होगी और आप लोग मेरा screen भी देख पा रहे होंगे. So recall everyone what we were studying in the last class. Recall that on Tuesdays and Thursdays we have the plan to deal with section 3 of history. So in the last class we began with chapter number 11, which is early problems. तो जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी दैट वाज ऑन लास्ट वीक ऑन थर्सडे. उस क्लास में हमने सेक्शन नंबर 3 हिस्ट्री का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, राइट? सो सी दिस एवरीवन, दिस इज ऑन हिस्ट्री वर्कबुक 3A, पेज नंबर 6. हिस्ट्री वर्कबुक 3A पे चले जाएं और पेज नंबर 6 पे चले जाएं. सही है? लेट्स रीड विद मी एवरीवन. एक दफा मेरे साथ पढ़ लें इसमें क्या लिखा हुआ है. सो दिस इज अबाउट द रेफ्यूजी क्राइसिस. ये रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में सवाल आ चुका एग्जाम में, जो कि आपको कहानी सुना रहे हैं इसके बारे में. सी दिस एवरीवन. ऑन 14th August 1947, Qaid Azam was sworn in as the Governor General of Pakistan. He declared that Pakistan has come to exist forever, but the new nation faced many problems before it could feel secure. The leaders of India had accepted the partition of subcontinent in the expectation that Pakistan would not be able to survive. This was a challenge for Qaid. He had to establish the country and hold it together despite the many problems it faced. One of these was the refugee problem. पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस का ये बिलीफ था कि पाकिस्तान ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगा, पाकिस्तान तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा. सो इट वॉज अ चैलेंज फॉर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कि पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट था. सो सी दिस एवरीवन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन द एग्जाम, 2012 and 2018. बोथ ऑफ द टाइम्स इन अक्टूबर नवंबर सेशन. दो दफा ये सवाल अक्टूबर नवंबर के सेशन में पूछा जा चुका है. 4 मार्क्स का ये सवाल पूछा जा चुका है. द क्वेश्चन इज describe the refugee problem, describe the refugee crisis of 1947. So twice in the exam this question has been asked already. Let's see everyone, you can take the screenshot as well. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग screenshot भी ले सकते हैं. So this is the question and this is the answer. After the late and unjust announcement of the Radcliffe Award, millions of people found themselves in the wrong country, which led to mass migration, communal violence, and refugee crisis. So recall everyone, in the last class we studied about the Radcliffe Award. और Radcliffe Award का मैंने आपको लिंक बताया था, how it led to the refugee crisis. मैंने आपको बताया था how it led to the refugee crisis. So if you all remember, refugee crisis किस तरीके से हुआ था. Number 1, late announcement of the Radcliffe Award. पहली बात ये कि Radcliffe Award की जो अनाउंसमेंट थी, जो फाइनल मैप की अनाउंसमेंट थी, वो बहुत देर से हुई थी. एंड नंबर 2, unjust distribution of boundaries, और बाउंड्रीज की बहुत ही अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुई थी. So we had studied about some cases regarding the unjust distribution. For example, we studied about Gurdaspur, Firozpur, we studied about Chittagong Hills as well. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था
कि रैटक्लिफ अवार्ड की वजह से किस तरीके से रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया। See this everyone, over 10 million people were affected. 7 million people took refuge in Pakistan. Karachi received 2 million refugees. और अगर मैं रेफ्यूजी क्राइसिस की बात करूं तो रेफ्यूजी क्राइसिस कुछ इस तरीके से था कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे। अराउंड 17 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि होमलेस हो गए थे। इंडिया पाकिस्तान दोनों में ही लोग डिस्प्लेस हुए हुए थे। There were people who were migrating from Pakistan to India. There were people who were migrating from India to Pakistan. पाकिस्तान में 7 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे। देयर वर 7 मिलियन रेफ्यूजीज हु अराइव्ड इन पाकिस्तान, और सिर्फ कराची में 2 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे। तो दिस वाज अ ग्रेट क्राइसिस, ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। और इसका एक फाइनल इम्पैक्ट भी मैं लिख देता हूं। इसका मैं एक फाइनल इम्पैक्ट भी लिख देता हूं, वो ये कि इट वाज अ चैलेंज फॉर the government to accommodate such a large number of people due to the lack of financial resources। तो एक्चुअली देखो मसला था क्या, जगह की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा एरिया है। मींस के अगर 2 मिलियन रेफ्यूजीज कराची में आ गए तो कोई बात नहीं, और भी आ जाएंगे। अगर 7 मिलियन रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए तो कोई मसला नहीं, और भी आ सकते हैं। जगह तो बहुत है। बट द पॉइंट इज दैट आवर गवर्नमेंट वाज न्यू एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव इनफ फंड्स एट दैट टाइम। इतने सारे लोग अगर पाकिस्तान में आएंगे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उनके घर कैसे होंगे, उनकी बाकी नीड्स को फुलफिल कैसे किया जाएगा। सो दिस वाज अ चैलेंज फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन अर्ली प्रॉब्लम। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन and we move to further problems. I'm going to talk about administrative and geographical problems in today's class. आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से और जियोग्राफिकल प्रॉब्लम से। Now see this everyone, सामने देखिएगा। About the geographical problem, the geographical problem was that this was East Pakistan, this was Bengal, and Bengal was called Eastern, while this region was called West Pakistan। तो पाकिस्तान तो बन गया था, लेकिन पाकिस्तान 2 डिफरेंट विंग्स में डिवाइडेड था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बीच में देयर वाज द 1000 माइल्स ऑफ इंडिया इन बिटवीन। बीच में क्या है, इंडिया का 1000 माइल्स का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान आर सेपरेटेड बाय 1000 माइल्स ऑफ इंडिया इन बिटवीन। इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में आपको इंडिया नजर आ रहा है। Now try to understand this problem everyone। उस जमाने में देयर वाज नो इंटरनेट, उस जमाने में इंटरनेट नहीं, उस जमाने में टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट वाज लिमिटेड, स्पेशली ओवर इंडिया। आजकल जैसे आप लोग सुन भी रहे होगे कि ईरान की जो जंग हो रही है, अगर आप लोग मैप उठा के देखो तो ईरान की एयर स्पेस बिल्कुल बंद हुई हुई है। इज नॉट अलाउड फॉर एनी एयरक्राफ्ट टू गो ओवर ईरान। उसी तरीके से अगर आपकी किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो वहां पर आपकी एयर स्पेस लिमिटेड हो जाती है। सो ऑब्वियसली इन सच अ कंडीशन पाकिस्तान को ये अलाउड नहीं था कि इतने फ्रीक्वेंटली अपने जहाज को लेकर वो जा सके। So considering all of these problems, it was so difficult for the early governments कि कैसे मैनेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन।
ना अच्छा उनके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना उनके पास टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम है। सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ही देखते हैं, दैट पाकिस्तान डिड नॉट इनहेरिट ब्रिटिश प्रॉपर्टीज एंड द ऑफिशियल्स। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को इनहेरिट नहीं किया। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस भी नहीं थे। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। India had experienced politicians, while Pakistan mostly had landowners with little political experience. पाकिस्तान में इतने कोई खास एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस नहीं थे, थोड़े बहुत थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, देयर वर सम पीपल हु वर experienced, but not everyone was experienced. ज्यादातर पाकिस्तान में बड़े बड़े जमींदार थे जो कि बहुत सारी जमीनों को कंट्रोल करते थे। जबकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर्स थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट को पास्ट में ब्रिटिश के दौर में चलाया हुआ था। Governing the two wings was difficult due to distance. Pakistan lacked administrative and government machinery, but still it survived. It was nothing less than a miracle. ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी रिसोर्सेज भी नहीं थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी नहीं थी, पाकिस्तान के पास रिजर्व बैंक भी नहीं था, फिर भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर गया। सो दिस वाज अ मिरेकल। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान did not even have its own constitution, and so it was using the Government of India Act 1935 as interim constitution। देखो, आपने लड़ झगड़ के अपना मुल्क बना लिया। हमें पाकिस्तान चाहिए, हम तो हिंदुस्तान के साथ रह नहीं सकते। वी वांट आवर ओन कंट्री, हमें अपना मुल्क चाहिए, और पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद अगर आपके मुल्क में अपना कानून नहीं होगा, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग योर ओन कंट्री। सो इट वाज एन अर्ली प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान कि पाकिस्तान में अपना कानून नहीं था और पाकिस्तान अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून इस्तेमाल कर रहा था। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इस वजह से because Pakistan, despite gaining independence, was technically still the dominion of UK। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन एक तरीके से ब्रिटिश के डोमिनियन का हिस्सा था। द किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन वर स्टिल कंसिडर्ड द किंग एंड क्वीन ऑफ पाकिस्तान। जो इंग्लैंड किंग और क्वीन थे, वो पाकिस्तान के भी किंग और क्वीन कंसिडर किए जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान वॉज यूजिंग द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश एज द टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, ये कितने अरसे तक प्रॉब्लम रहा? It took 9 years for Pakistan to make its first constitution। पाकिस्तान ने अपना पहला कानून कब बनाया? पाकिस्तान ने अपना पहला कानून बनाया 1956 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के 9 साल के बाद जाके पाकिस्तान अपना कानून बना सका था। एंड दिस इज व्हाई इट वाज अ प्रॉब्लम, और इसी वजह से ये बहुत बड़ा इशू था। नाउ लेट्स सी दिस एवरीवन। दिस इज ऑन वर्कबुक नंबर 3A, page number is 7, and screenshot is allowed। You can take the screenshot as well। आप लोग चाहें तो screenshot इसका ले सकते हैं, because obviously you won't be able to write so quickly, it is already written। मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि इंटरनेट डिसरप्शन से बचने के लिए, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग तरावी वगैरह के बाद, पूरा दिन पढ़ाने के बाद, उसके बाद मतलब कि जब दोबारा से लिखना पड़ता है, इंटरनेट एकदम से बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से लिखो, तो मुझे तो इफ्तार के बाद भी रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये पहले से लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। See this question everyone, describe the administrative problems faced by Pakistan after independence। अच्छा, स्क्रीनशॉट सिर्फ लेना नहीं है, बाद में इसे वर्कबुक में सॉल्व भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लिया
Try to write as well afterwards. Section 3 इस साल के लिए important भी है, so I would want you all के आपका काम complete हो अपनी workbooks के अंदर. After the creation of Pakistan, there was a need to have a new government immediately, but there was a shortage of properly qualified and experienced personnel, which made the task of running a government department extremely difficult. पाकिस्तान बनने के बाद जरूरत थी कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन गवर्नमेंट इमीडिएटली बनाना इतना कोई आसान टास्क नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में कोई बहुत एक्सपीरियंस लोग नहीं थे. पाकिस्तान was also created in two wings, namely East Pakistan and West Pakistan, separated by 1,000 miles of India in between. So, governing two wings was difficult due to the distance. उस जमाने में ड्यू टू द डिस्टेंस, कंसिडरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड telecommunications, infrastructure of that time. खास तौर पे अगर आप जहन में रखो कि उस जमाने में कोई बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसी वजह से इशू हो रहा था, इसी वजह से पाकिस्तान में गवर्नेंस नहीं हो पा रही. नाउ वी मूव टू अनदर प्रॉब्लम एंड दिस इज कॉल्ड द सोशल प्रॉब्लम. इसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं. नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, जरा सामने देखिएगा. कुछ सोशल प्रॉब्लम्स का भी जिक्र कर लेते हैं कि व्हाट वर दी सोशल प्रॉब्लम्स. So there was this social problem that Pakistan had 5 different regions in Pakistan. There were 5 different regions in Pakistan. There were the Pashtun people in the north and in the northwest. There were Baloch people as well in the southwest. There were Sindhi people in the southeastern side. There were Punjabi people in the northeastern side. There were Bengali as well in the eastern side. All had different traditions, cultures, and lifestyles. They were not happy with Urdu being the national language and not the one they spoke. अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है. प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया. सो देयर वर ऑल अदर पीपल एज वेल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बहुत सारे लोग बिलोंग भी करते थे ना. Although Jinnah wanted to instill unity among the people of Pakistan, but actually ये decision इतना कामयाब नहीं हो सका because many people preferred their own language over Urdu. बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. Bengalis wanted their own language to become the national language. They said 56% of the population speaks Bengali, so why not Bengali? And so on. So this was another cause of disunity. Let's write everyone. ये वाला सवाल हम लोग solve कर लेंगे. Let's write with me everyone. Describe the social problems faced by Pakistan after independence. Write down everyone. There were different ethnic groups who had different cultures, traditions, and languages. So it was a challenge to unite them. Full stop. Also, कुछ और social problems भी लिख रहा हूं. Also, there were few schools
and colleges, and only 2 universities, full stop. The hospitals were insufficient for the population. Full stop. This led to poor literacy rate, comma, high death rate, and lack of unity in the early years. तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सोशल प्रॉब्लम से आपको क्या पता चल रहा है? सोशल प्रॉब्लम से आपको ये पता चल रहा है कि शुरू के दिनों में पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की कमी थी, पाकिस्तान में स्कूल्स की कमी थी, पाकिस्तान में इतने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज थी, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ना आपस में यूनिटी थी, ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, ना लिटरेसी रेट अच्छा था, और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था. This brings us to the next problem, everyone. And the next problem is economic problem. अब मैं आपको पढ़ाऊंगा economic problem के बारे में. So let's see, everyone, about the economic problems. Industrialization did not take place in Pakistan, and 90% of the population lived in the countryside, which means the rural areas. पाकिस्तान में जब बना पाकिस्तान, तो ज्यादातर आबादी हमारी कहाँ पड़ती है? ज्यादातर आबादी हमारी रूरल एरियाज में रहती थी. There were only 8 towns with 100,000 plus population. So imagine पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हमारे पास 8 urban centers थे. There were only 8 urban centers in entire Pakistan. सिर्फ 8 urban centers थे. Major industry was agriculture, but it did not produce enough for export. पाकिस्तान की जो major industry थी, that was only agriculture. लेकिन बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं होता था कि जिससे हम एक्सपोर्ट भी कर सकें कुछ चीजों के अलावा. ईस्ट पाकिस्तान जूट was exported and was the main source of foreign exchange. Bengal's jute took over nearly 70% of the world's crop. और उस जमाने में एक बहुत ही पॉपुलर क्रॉप था जिसका नाम था जूट, और जूट को प्रोड्यूस किया जाता था. ईस्ट पाकिस्तान में जूट को प्रोड्यूस किया जाता था. जूट को एक्सपोर्ट भी करते थे. जूट के बैग्स बनते थे, जूट के बास्केट्स बनती थी, जूट से बहुत सारी चीजें बनती थी. सो दिस वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन, दिस वाज अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा कोई ऐसा चीज नहीं होती थी. लेकिन इसी जमाने में पाकिस्तान ऑल्सो फेस्ड अ डिस्प्यूट, and this is also called the canal water dispute. इसे canal water dispute भी कहा जाता है. What was it? Agriculture in Punjab was dependent on water works located in India, Firozpur. पाकिस्तान में जो पानी आता था वो रिवर्स से आता है. कौन से रिवर्स से आता है? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, यहां से पानी बहता हुआ पाकिस्तान में आता है. But the problem is, Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj, all of these rivers originate in India. ये सारे के सारे rivers ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान से originate होते हैं, फिर इनका पानी बहता हुआ पाकिस्तान में आता है. What happened then? Initially, India had promised not to cut off the water supply. शुरू में इंडिया ने वादा किया था कि इंडिया पानी की सप्लाई को कट ऑफ नहीं करेगा. बट इन अप्रैल 1948 इंडिया ब्रोक दिस प्रॉमिस. लेकिन इंडिया ने इस वादे को तोड़ दिया. दे डिमांडेड दैट पाकिस्तान शुड पे फॉर द वाटर. More than 1.65 million acres of agricultural land was to be affected.
इंडिया ने पानी को बंद कर दिया। जो हेडवर्क्स थे फिरोजपुर, गुरदासपुर, मधुपुर के ऊपर, उन हेडवर्क्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान रिक्वेस्टेड दैट द प्रॉब्लम बी टेकन इनटू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट इंडिया रिफ्यूज्ड। पाकिस्तान ने कहा इसे इंटरनेशनल अदालत के अंदर इस मसले को लेकर जाते हैं, लेकिन इंडिया ने इसे मना कर दिया। In 1958, a temporary agreement was signed between India and Pakistan and the World Bank. In 1959-1960, Indus Water Treaty was signed और फिर फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी ने इस मसले को सॉल्व किया। 1959-1960 में जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। कैसे सॉल्व किया गया था? इसका सॉल्यूशन ये था कि इंडस, जेहलम and Chenab were exclusively given to Pakistan along with financial and technical support to build dams, barrages, canals, HEP stations, etc. India got exclusive control over Ravi, Satluj, and Beas. So what is Beas? Beas is a tributary of river Satluj. तो ब्यास क्या है? ब्यास है रिवर सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये 3 रिवर्स थे जो कि इंडिया को मिल गए थे, वो इसे एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिल गया था। और 3 रिवर्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान को मिल गए थे। पाकिस्तान को पैसा भी मिला, टेक्निकल सपोर्ट भी मिली कि पाकिस्तान डैम्स बनाए, बैराजेस बनाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सम मोर प्रॉब्लम्स एवरीवन, कुछ मजीद प्रॉब्लम्स को देखते हैं। बिफोर वी गो टू मिलिट्री एसेट्स, फर्स्ट लेट्स सी द फाइनेंशियल वंस। पहले फाइनेंशियल को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलिट्री के ऊपर जाते हैं। सी दिस एवरीवन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ वेल्थ क्या था? इट वाज 17:5। कितना था? 17:5 था। 17:5 को सिंप्लीफाई करें तो इट्स लाइक 15:5। मजीद सिंप्लीफाई करें तो इट्स लाइक 3:1। So means कि 1 part should be given to Pakistan and 3 parts of anything should be given to India. So this is the basic scenario. ये आपको basic scenario नजर आ रहा है। But there were some problems. Problems क्या थे? Problems ये थे कि number 1, Pakistan did not have a reserve बैंक। पहला मसला ये कि पाकिस्तान में कोई रिजर्व बैंक ही नहीं था। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया? पाकिस्तान डिड नॉट इवन हैव अ रिजर्व बैंक। पाकिस्तान में अपना कोई रिजर्व बैंक ही नहीं था। प्रॉब्लम नंबर 2, सी दिस एवरीवन, पाकिस्तान would be given financial assets on installments। दूसरा मसला क्या है कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एसेट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? पाकिस्तान को फाइनेंशियल एसेट्स मिलेंगे इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे, किस्तों पे मिलेंगे। सो सी दिस एवरीवन, देयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट हैड 4,000 मिलियन रुपीस। और इसमें कितने पैसे थे? 4,000 मिलियन रुपीस इसमें मौजूद थे। सो इस हिसाब से
3,000 million rupees should be given to India and 1,000 million rupees should be given to Pakistan. और 1,000 million rupees किसे मिलने चाहिए? पाकिस्तान को मिलने चाहिए. लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान शुड बी गिवन ओनली 750 मिलियन रुपीस, के पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 750 मिलियन रुपीस मिलेंगे. और वो भी किस बेस पे मिलेंगे? इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे मिलेंगे. सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केम टू पाकिस्तान. पहली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान में आ गई एंड दैट वाज 200 मिलियन रुपीस. ये 200 मिलियन रुपीस थी. ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा मुल्क को चलाना. 200 मिलियन रुपीस में आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? दिस वुड बी अ प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा. रेफ्यूजीज भी आ रहे हैं, डेवलपमेंट भी नहीं हो रही. सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ा इशू है. और मीनवाइल इंडिया स्टॉप्ड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू टू कश्मीर वॉर. जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के 1 साल के बाद ही, आज़ादी के विद इन 1 ईयर जब जंग शुरू हो गई कश्मीर में, तो इंडिया को मौका मिल गया. इंडिया स्टॉप द सेकंड इंस्टॉलमेंट. इंडिया ने पाकिस्तान की सेकंड इंस्टॉलमेंट को रोक लिया. अब इमेजिन के आपके पास वेपन्स भी नहीं है, आपको पैसा भी चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाने हैं, यू नीड मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. और किसी भी चीज के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे क्या करेंगे? कैसे मुल्क को चलाएंगे? बट लेटर सेकेंड इंस्टॉलमेंट was released. It was of 500 million rupees, but 50 million rupees were not given. पाकिस्तान को मजीद 500 मिलियन रुपीस मिल गए, लेकिन पाकिस्तान को 50 मिलियन रुपीस बिल्कुल भी नहीं मिले थे. सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम एवरीवन. ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. Now listen to this story everyone. जरा स्टोरी को सुनिएगा. The story of how Pakistan got the 500 million rupees. आपको ये सुन के बड़ी हैरत भी होगी कि पाकिस्तान को ये 500 मिलियन रुपीस कैसे मिले थे. So there was the person whose name was गांधी. और गांधी को आप जानते हैं ऑलरेडी. ये गांधी के बारे में आपने पूरा सेक्शन 2 पढ़ा है. So you already know about गांधी. गांधी को आप जानते हैं. पता है गांधी ने क्या किया? गांधी went on हंगर स्ट्राइक. गांधी हंगर स्ट्राइक पे चला गया. हंगर स्ट्राइक का मतलब यह है कि गांधी ने कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पाकिस्तान को उसका ड्यू शेयर नहीं मिल जाता. गांधी ने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पाकिस्तान को उसका शेयर ना मिल जाए. सो इंडियन गवर्नमेंट वाज प्रेशराइज्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव मनी टू पाकिस्तान. इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा. इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इट एवरीवन. सो लेट्स फर्स्ट राइट अबाउट इट. पहले इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. See this question everyone. Page number 8. You can take the screenshot. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Describe the economic problems faced by Pakistan after independence. 4 marks. The new government was also short of money. Pakistan had been awarded 750 million rupees under the final settlement, but only received 200 million at first. The second installment was delayed due to the Kashmir war. Even when it was released, 50 million rupees were not given. जब पाकिस्तान को पैसे मिले भी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिली भी, तो भी पाकिस्तान को कंप्लीटली पैसे नहीं मिले थे. This put an enormous strain on the government as they were not able to use the money appropriately. और ऑब्वियसली आपको मुल्क चलाना है, लेकिन मुल्क कैसे चलाओगे जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा. So this was the issue everyone. Now we move to the next question, which is about canal water dispute. The question is, what was the canal water dispute? 4 marks. Another question, describe the canal water dispute.
4 marks. May June 2010 and October November 2022. So this question has come in the exam twice. 2 दफा एग्जाम में इस तरीके से आ चुका है. Let's see this everyone. We need to write this. इसे हमें लिखना होगा. Let's write everyone. Initially, India had promised not to cut off the water supply to Pakistan, but in April 1948, India stopped the flow of rivers Ravi and Satluj entering Pakistan by closing the headworks of Firozpur and Madhupur. Full stop. This affected irrigation and food production in Pakistan. Full stop. In 1948, a temporary agreement was signed to allow the water to flow, but the issue was solved in 1959-60 by Indus Water Treaty. इंडस वाटर ट्रीटी. तो इस तरीके से फाइनली इस इशू को सॉल्व किया गया था एंड दैट वाज वे लेटर. इतने अरसे ये प्रॉब्लम चलती रही थी, टेम्परेरी एग्रीमेंट्स ही चल रहे थे, लेकिन फाइनली इस इशू को कब सॉल्व किया गया? 1959-1960 में जाके इस इशू को सॉल्व किया गया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. अ 7 मार्क्स क्वेश्चन जो कि बहुत पुराना सवाल है. इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2000. ईयर 2000 में ये सवाल पूछा गया है. 2000 में जून में सवाल पूछा गया है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बाद में आप लोग इसे लिख के कंप्लीट कर लेंगे अपनी वर्कबुक्स में. वर्कबुक्स नहीं है तो नोटबुक्स में लिख लेना, लेकिन लिखना जरूरी है. एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर द कैनाल वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कौन से 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ है? लेट्स सी एवरीवन. मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज किया हुआ है ताकि आपको नजर आ जाए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, एक्सप्लेनेशन और इम्पैक्ट आपको नजर आ जाए. फर्स्टली, कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाज कॉज्ड ड्यू टू द अनफेयर रेडक्लिफ अवार्ड्स. सबसे पहला रीजन क्या है कि रेडक्लिफ अवार्ड्स काफी अनफेयर थे, उसकी वजह से कैनाल वाटर डिस्प्यूट हुआ था. आफ्टर पार्टीशन इन 1947, canal headworks like Madhupur and Firozpur were given to India, even though many of the canals irrigated agricultural land in Pakistani Punjab. अब देखो, बहुत सारे कैनाल ऐसे थे जिनका पानी बहते हुए पाकिस्तान में आता था. अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती तो कुछ इस तरीके से कर देते कि पाकिस्तान को वो एरियाज मिल जाते. खास तौर पे फिरोजपुर और गुरदासपुर वाला जो रीजन था, यहाँ पर तो मुसलमान रहते थे. सो दिस शुड हैव बीन गिवन टू पाकिस्तान. दिस कुड हैव बीन गिवन टू पाकिस्तान, बट इट वाजंट गिवन. दिस मेड पाकिस्तान डिपेंडेंट ऑन इंडिया
for water supply from the rivers Ravi and Satluj that originated from India, creating tensions between the two countries. तो देखो प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि अगर रेडक्लिफ अवार्ड ने ठीक तरीके से बाउंड्रीज को मार्क कर दिया होता तो ये इशू भी नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली दिस वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एवरीवन। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। And meanwhile, you can obviously take the screenshot. It is allowed. Secondly, canal water dispute was caused due to India's stoppage of water. इंडिया ने शुरू में वादा किया था कि वो लोग पाकिस्तान के पानी को नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने इस वादे को तोड़ दिया। Initially, India had promised not to cut off the water supply, but in April 1948, India temporarily stopped the flow of water from the canals to put pressure on Pakistan as the Kashmir conflict was going on. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के ऊपर लड़ाई चल रही थी, तो एक तरीके से उन्होंने बहाना बना दिया, पानी को रोक दिया ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाए। अच्छा, इट्स नथिंग न्यू। आई मीन 2025 में भी तो यही हुआ था। इफ यू ऑल रिमेंबर, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई थी तो उस टाइम पर भी इंडिया वॉज कटिंग ऑफ द वाटर सप्लाई, और फिर अचानक से जब पाकिस्तान में बहुत तेज बारिशें हुई थी और सैलाब की कंडीशन हो गई थी, सो इंडिया हैड ओपनड अप द गेट्स ऑफ द हेडवर्क्स ताकि पाकिस्तान में पानी बहता हुआ आ जाए। सो इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये तो अब होता ही रहता है। This was seen as a deliberate attempt to force Pakistan to reach a compromise over Kashmir. और इस तरीके से जब उन्होंने पानी को रोका, इससे समझ में आ रहा था कि इंडिया जानबूझ के प्रेशर अप्लाई कर रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ जाए और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज रीच कर जाए। सो द स्टॉपेज ऑफ वाटर एज अ पॉलिटिकल टूल लेड टू द कैनाल वाटर डिस्प्यूट। तो कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्यों हुआ? कैनाल वाटर डिस्प्यूट इस वजह से हुआ क्योंकि इंडिया ने पानी को एक पॉलिटिकल टूल बना के इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए, जिसकी वजह से कैनाल वाटर डिस्प्यूट हो गया। फाइनली द लास्ट पैराग्राफ एवरीवन। Lastly, the canal water dispute was caused due to the absence of a clear water sharing agreement. देखो पता है क्या है? हर चीज प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। हर चीज प्रॉपर लिख कर होनी चाहिए कि किस वक्त क्या होगा, कैसे होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए, और वो नहीं हुआ था। At the time of independence, no permanent system was made to divide rivers between India and Pakistan. अंग्रेजों की जिम्मेदारी थी ये। It was their duty to divide each and every asset between Pakistan and India fairly. ऐसे थोड़ी बस मुल्क को छोड़ के चले गए अंग्रेज, कश्मीर के इशू को छोड़ के चले गए, पानी के इशू को छोड़ के चले गए। इट वॉज देयर ड्यूटी, इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी एसेट्स हैं उन सबको सही तरीके से डिवाइड करें। कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं इसके बारे में। बोथ द कंट्रीज क्लेम्ड द राइट्स ओवर रिवर्स। इंडिया का कहना ये था द रिवर्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, तो दीज रिवर्स बिलोंग टू इंडिया। इंडिया का कहना था ये दरिया हमारे पास से शुरू होते हैं तो ये दरिया हमारे दरिया है। पाकिस्तान का कहना था ये दरिया हमारे पास बहते हैं तो ये हमारे दरिया हैं। So that is why this led to conflict. This led to disagreements which prolonged the conflict until 1959. तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम चलता रहा 1959 में, क्योंकि दोनों ही डिसएग्री करते थे ओवर द फ्लो ऑफ वाटर, ओवर द ओरिजिन ऑफ वाटर। Now we move to the next one everyone। एक और प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, एंड दिस इज अबाउट द मिलिट्री एसेट्स। अब ये मिलिट्री एसेट्स के ऊपर बात होगी, और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक टेबल आपको नजर आ रहा है। ऑर्डिनेंस स्टोर्स मींस वेपन्स, डिपो मींस स्टोर ऑफ वेपन्स,
So Pakistan was allocated 160,000 tons of weapons, but Pakistan received only 23,225 tons. Pakistan was promised 172,000 tons of engineering stores, but Pakistan got only 1,128 tons. Pakistan was promised 1,461 soft vehicles, but Pakistan got only 74. Pakistan was promised 249 armored vehicles, but Pakistan only got none. तो पाकिस्तान को जितने मिलिट्री एसेट्स को प्रॉमिस किया गया था, पाकिस्तान वाज नॉट रिसीविंग ऑल ऑफ देम. पाकिस्तान को सारी चीजें तो मिल भी नहीं रही थी. ना वेपन फैक्ट्रीज मिल रही थी, ना टैंक्स मिल रहे थे, ना दूसरी गाड़ियां मिल रही थी. ये सच पाकिस्तान को तो मिल ही नहीं रहा था. A great deal that Pakistan received was damaged and unusable. जो वेपन्स पाकिस्तान को मिल रहे थे वो या तो डैमेज्ड होते थे या इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होते थे. What about the armed forces? Armored divisions, Pakistan got 6, India got 14. Artillery divisions, Pakistan got 8, India got 40. Infantry divisions, Pakistan got 8, India got 21. So in a way, Indian Army was 3 times larger than Pakistan's army. तो पाकिस्तान की आर्मी साइज के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की आर्मी तो काफी बड़ी थी. और एक चीज तो ये है कि हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइड द सोल्जर्स. आप सोल्जर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? सम ऑफ यू वुड से कि सर कोई मसला ही नहीं है, सोल्जर्स को डिवाइड करना है तो कर दें. मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू सोल्जर्स हैं, सिख सोल्जर्स हैं, वो हिंदुस्तान में रह जाएं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं. देयर वर मेनी मुस्लिम सोल्जर्स who preferred to live in India and serve the Indian Army. ऐसे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स थे जो कि इंडिया में रहना चाहते थे, इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते थे. ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे जो कि पाकिस्तान में रहना चाहते थे और पाकिस्तान की आर्मी को सर्व करना चाहते थे. सो बेस्ड ऑन रिलीजन यू कैन नॉट डिटरमिन द लॉयल्टी ऑफ अ पर्सन. सिर्फ एक रिलीजन की बेस पे आप ये लॉयल्टी को तय नहीं कर सकते कि ये मुसलमान है तो पाकिस्तान से सिंसेयर होगा, ये हिंदू है तो हिंदुस्तान से सिंसेयर होगा. ऐसा नहीं होता. देयर वर मेनी हिंदूज हु वर लिविंग इन पाकिस्तान, हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, who were loyal to Pakistan, who are loyal to Pakistan. There were many Muslims who were living in India, who are living in India, who are loyal to India only. तो इससे पता चलता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे सोल्जर्स को डिवाइड करना है. अच्छा, फिर पाकिस्तान की किस्मत देखें. पाकिस्तान में जो सोल्जर्स आ गए वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं थे. अब पाकिस्तान के लिए इशू क्या था? पाकिस्तान के लिए इशू ये था कि पाकिस्तान को ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ गया टू ट्रेन द पाकिस्तानी सोल्जर्स. हमारा जो पहला कमांडर इन चीफ था, हिज नेम वाज जनरल डोगलस ग्रेसी, और जनरल डोगलस ग्रेसी को अपॉइंट कर लिया गया टू लीड पाकिस्तान आर्मी. बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन बिकॉज दिस पर्सन वाजंट लॉयल. ये इंसान लॉयल नहीं था पाकिस्तान आर्मी से. जब कश्मीर में जंग चल रही थी, दिस पर्सन रिफ्यूज टू फाइट इन कश्मीर. इसने कश्मीर में लड़ने से इनकार कर दिया एंड दिस कॉस्ट पाकिस्तान अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ कश्मीर, और इसकी वजह से हम कश्मीर में एक एडवांटेज को गेन नहीं कर सके थे. सी दिस क्वेश्चन एवरीवन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अक्टूबर नवंबर 2003. व्हाई वाज द डिवीजन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस and military assets a problem for Pakistan in 1947? 7 मार्क्स का सवाल है कि पाकिस्तान में आर्मी और मिलिट्री के जो एसेट्स थे उन्हें डिवीजन करना क्यों इतना प्रॉब्लम था, इतना मसला क्या था इसमें. सो यू कैन ऑब्वियसली टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन and complete it in your workbooks, in your notebooks. Firstly, it was the problem because Pakistan received smaller share of equipments. पहली बात ये कि ये इशू था क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वेपन्स को रिसीव नहीं किया था.
Pakistan got only 1/3 of the army and military stores. पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो भी टोटल रिजर्व्स थे उसका सिर्फ 30% ही एक तरीके से मिल रहा था. Most heavy weapons factories and depots were in India. ज्यादातर जो आर्मी के इक्विपमेंट थे, जो आर्मी के स्टोरेज थे, वेपन फैक्ट्रीज थी, वो सब कुछ इंडिया में ही थी. सो पाकिस्तान बिगैन विद शॉर्टेजेस, और पाकिस्तान ने शॉर्टेजेस से स्टार्ट किया. दिस लेड टू अ वीकर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का बहुत ही वीक डिफेंस था. इस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया. मूविंग ऑन टू paragraph number 2, everyone. Secondly, it was a problem because of the delays in the transfer of assets. दूसरा ये कि पाकिस्तान को एसेट्स मिल तो रहे थे लेकिन बहुत स्लोली मिल रहे थे, ग्रेजुअली मिल रहे थे. Even when Pakistan was allocated some military supplies and stores, the transfer process was slow and sometimes blocked by the paperwork issues. बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को प्रॉमिस किया गया था कि पाकिस्तान को वेपन्स मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, इंजीनियरिंग स्टोर्स मिलेंगे, फैक्ट्रीज मिलेंगी, लेकिन अक्सर इन चीज़ों को मिलने में बहुत डिले हो जाता था. उसका रीज़न ये था कि बहुत सारा पेपर वर्क चल रहा था डिवीजन के टाइम पर, और वो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता था और पाकिस्तान को टाइमली चीज़ें नहीं मिल रही थी. The equipment that Pakistan received was often damaged and unusable. जो वेपन्स पाकिस्तान रिसीव कर रहा था वो बहुत ही आउटडेटेड वेपन्स होती थी, खराब वेपन्स होती थी. अच्छी अच्छी वेपन्स इंडिया ने अपने पास रख ली और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बेकार वेपन्स को रिलीज कर दिया था. दिस रिड्यूस्ड द मिलिट्री रेडीनेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी. इसका मतलब यह है पाकिस्तान आर्मी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं थी. इट मीन्स के पाकिस्तान आर्मी जो थी उससे मुस्तकिल यही इशू का सामना करना पड़ता था कि फौरन से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे इन टाइम्स ऑफ एनी इमरजेंसी. लास्टली, it was a problem due to the lack of trained military personnel. At the time of partition, Pakistan had fewer experienced officers because in the old British Indian Army, key posts were held by the non-Muslims. बेटा अगर आपको याद हो, there was a time when the British used to only prefer the non-Muslims in their army. सिर्फ और सिर्फ non-Muslims को अपनी आर्मी में रखते थे, मुसलमानों को प्रेफर भी नहीं करते थे. आगे चलिए क्या हुआ कि आज़ादी के टाइम पर भी जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को डिवाइड किया जा रहा था तो उसमें ज़्यादातर तो नॉन मुस्लिम्स थे, उसमें मुसलमान इतने थे भी नहीं, और जो मुसलमान थे वो एक्सपीरियंस ही नहीं थे. अब क्या हुआ इसके बाद? दिस लेड टू पाकिस्तान अपॉइंटिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर ट्रेनिंग. मैंने ट्रेनिंग की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दी है, एनीवे training, which was not only expensive but also compromised the loyalty, like when General Douglas Gracie refused to fight in Kashmir. अब देखो मसला क्या है कि पाकिस्तान में जब एक्सपीरियंस सोल्जर्स नहीं थे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को हायर करना पड़ा ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक्सपेंसिव भी थे और वो लॉयल भी नहीं थे, जैसे कि जनरल डोगलस ग्रेसी ने कश्मीर में लड़ने से इनकार कर दिया था. सो दिस वाज द 3 reasons that caused the military problems, everyone. जस्ट द लास्ट वन, एक आखिरी पॉइंट आपको दिखाऊंगा. लास्ट वन everyone, the issue of princely states. I'm going to continue the explanation of it in the next class, लेकिन एक दफा आप लोग जरा इसे देख लीजिएगा. Describe the issue of princely states after independence. The accession of princely states, especially Kashmir, Junagadh and Hyderabad Deccan, was a problem. पाकिस्तान और इंडिया सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इजीली डिसाइड कर लिया. 3 जगह पे इशू हो गया. नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 जूनागढ़ एंड नंबर 3 हैदराबाद दक्कन.
The Muslim rulers of Junagadh and Hyderabad Deccan wanted to join Pakistan, but the pressure from non-Muslim population and the occupation by the Indian Army led to the problems. हैदराबाद दक्कन में जो रूलर थे वो मुसलमान थे, जूनागढ़ के स्टेट में जो रूलर थे वो भी मुसलमान थे। मुसलमान रूलर्स चाहते थे कि अपने अपने इलाकों को पाकिस्तान का पार्ट बना दें, लेकिन हैदराबाद दक्कन में और जूनागढ़ में हिंदुओं की, नॉन मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। नॉन मुस्लिम्स ने हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ में रेबल किया। इंडियन आर्मी ने हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ को कैप्चर कर लिया और इस तरीके से हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ फोर्सफुली इंडिया का पार्ट बन गए। What happened then? On the other hand, the Muslim population of Kashmir wanted to join Pakistan, while the Hindu ruler forced 200,000 Muslims to migrate to Pakistan. अब इसका ऑपोजिट सीन कहाँ पे था? कश्मीर में था। कश्मीर में रूलर was a Hindu, his name was हरी सिंह डोगरा, while the majority of the population was Muslim. मुसलमानों ने कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, लेकिन हिंदू रूलर ने कहा कि नहीं, आप लोग को नहीं, कश्मीर को फिलहाल स्टे ऑर्डर चाहिए और बाद में हो सकता है, उसका प्लान था कि उसे इंडिया का पार्ट बना देते। हिंदू रूलर ने फोर्स किया मुसलमानों को कि मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान चले जाएं। कश्मीरी मुस्लिम्स rebelled against this and fled to India. Full-scale war started between India and Pakistan, and this was the issue of princely states. Issue था princely states का। We're going to end the class over here, everyone, and continue on Thursday. Thursday की क्लास में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। I'm going to take up the questions